السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 67۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا تھا۔ میں نے کئی بار کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، میرے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن موت بازو پھیلائے اپنی طرف آتے دیکھی تو میرے اندر جینے کی خواہش بیدار ہو گئی اور میں موت کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگا۔ کوئی پناہ اور کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی اور زہر تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، مگر یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ جاؤں گا کہاں۔ میں اسی شہر کا رہنے والا تھا، وہاں سول ہاسپٹل تھا اور قریب ہی تھا۔ ایک ہندو اور ایک سکھ ڈاکٹروں کے گھروں سے بھی میں واقف تھا۔ میں ایک حکیم کا گھر بھی جانتا تھا، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے میں ان میں سے کسی کے ہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں پولیس کی حراست میں مرنے سے ڈرتا تھا۔ خالہ کا گھر تھا، شہناز کا گھر تھا، ایوب تھوڑے دیر ہی پہلے ملا تھا، وہ مجھے پناہ دے سکتا تھا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کو گھر بلا سکتا تھا، لیکن موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بھی میں نے اس احساس کو زندہ رکھا کہ ان میں سے کسی کے بھی گھر پکڑا گیا تو پولیس اسے ایک مفرور قاتل کو پناہ دینے کے جرم میں گرفتار کر لے گی۔ سینے میں ایسی جلن محسوس ہوئی جو شاید پیڑ سے شروع ہوئی اور حلق تک چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پیاس اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ منہ خشک ہو گیا اور میں نے زبان اکڑتی ہوئی محسوس کی۔ میں نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کا تہیہ کر لیا اور سوچے بغیر کہ میں کہاں جاؤں گا شہر کی طرف چل پڑا۔ اپنا گھر یاد آ گیا، اپنی ماں یاد آ گئی، اپنا باپ یاد آ گیا۔ میری قسمت اپنے باپ سے بہتر نہ تھی، اسے بھی ایک ناگر نے ڈس لیا تھا۔ بچپن یاد آیا، بے فکری اور بے نیازی کے دن یاد آئے اور ان یادوں کے ساتھ ہی اشکوں کا کارواں چل پڑا۔ وہ پگلی بھی یاد آئی جس نے کہا تھا کہ یہ بچہ آگ میں سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچے گا۔ وہ پگلی تھی، نہیں جانتی تھی کہ منزلوں کے راستوں میں سانپ بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جلنے لگا، سوچ آئی کہ اس آگ سے نکل جاؤں گا، نہیں، زہر دماغ تک پہنچنے لگا تھا۔ میں نے تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا، جلتے ہوئے سینے سے ہوک سی اٹھی، میرے خدا، یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ خیال آیا گناہوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا۔ حمید اللہ خان کی جاگیر پر ایک مزارہ میرے اور شہناز کے ہاتھوں سے مرا تھا، وہ بے قصور تھا، اس نے تو اپنے آقا کا حکم مانا تھا۔ پھر میں نے ایک انگریز افسر کو قتل کیا تھا، لیکن اسے میں گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک غریب کنواری کو اس ہوسکار انگریز سے بچانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ زندہ نہ رہے۔ ہاں، یاد آ گیا، ایک گناہ یاد آ گیا جس کا میں ارتکاب نہیں کر سکا تھا، پھر بھی میں اتنی سی بھول کو گناہ کبیرہ سمجھتا تھا کہ اس کا ارادہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ گلشن آرا یاد آ گئی اور وہ رات بھی یاد آئی جب میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ میں تھا جو بہک گیا تھا۔ اپنے گناہوں کا ہار شیطان کے گلے میں ڈال دینا کم از کم مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی مولانا شراب کے 2-4 گھونٹ پی کر کہے کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا تو خدا انہیں بخش تو نہیں دے گا۔ دوزخ انہی کے انتظار میں ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ گلشن آرا تھی جس نے نواب کے محل میں مجھے بلایا۔ اس وقت وہ حرص اور ہوس کا بڑا ہی حسین مجسمہ تھی، سرتاپا گناہ تھی۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں، اس کے نیم وا ہونٹوں میں اور اس کے دہکتے ہوئے رخساروں میں زاہد شکن اشتعال انگیزی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کی بھٹی میں پگھل جانے سے بچا لیا تھا۔ پھر بھی وہ گلشن آرا ہی تھی جو چھوٹے سے ایک گاؤں کے ایک کمرے میں میرے ساتھ تھی۔ وہ گناہوں کی دلدل سے اور حسن و جوانی کی سحر کاریوں سے نکل آئی تھی اور میں حرص و ہوس کا پیکر بن گیا تھا۔
गुलशन आरा ने मुझे रोका था। मुझ पर कुछ और ही नशा तारी था। मैंने गुलशन आरा की एक भी बात नहीं सुनी थी। आपको याद होगा, मैंने ये वाक़या आपको सुनाया है। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि गुलशन आरा इस गुनाह से जो उसकी नस नस में रचा बसा था, इस तरह भागेगी कि इस दुनिया से ही अपने वजूद को उठा लेगी। वो भागी तो मैं उसके पीछे गया और वो दरिया में कूद गई। फिर वो गुलशन देखी जो शहनाज के घर मुझे मिली थी। ना जाने वो कौन सी दुनिया में पहुंच गई थी। उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन वो रात याद दिलाकर उसने मुझे शर्मसार नहीं किया था। शर्मसार तो मैं हो ही गया था। अब तो वो सरापा तकद्दुस थी। मैं उसके सामने यूं पिघल गया जैसे भट्टी में लोहा पिघल जाता है। आज मेरे जिस्म में जहर बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहा था और मेरे दिमाग की नसों में उतरता जा रहा था। मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि मुझे गुलशन आरा के घर पहुंचकर और सर उसके पांव में रखकर और माफ़ी मांगकर जान दे देनी चाहिए। मैंने ये ना सोचा कि पुलिस गुलशन आरा और उसके खामद को भी मुझे पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकती है। मैं दरअसल अब कुछ सोचने के काबिल नहीं रह गया था। सिर्फ एक ख्याल मेरे जहन में पुख्ता हो गया कि मुझे अब सिर्फ कब्र में पनाह मिलेगी। इसलिए मैंने कहीं पनाह ढूंढने का ख्याल जहन से निकाल दिया था। गुलशन अपने खामद के साथ जिस मकान में रहती थी वो शहर से ज़रा हट कर था। दरमियान में चंद एक खेत आते थे और थोड़ी सी जगह बंजर और नशीबी थी। ये एहसास अभी मुझ में ज़िंदा था कि गुलशन का खामद ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से माजूर है। आपको याद होगा, गुलशन आरा का खामद दरवेश सा आदमी था जिसे लोगों ने मुरादें पूरी करने के वाला पीर बना रखा था। शहनाज भी उसके पास जाती रही थी और उसने शहनाज के साथ जो बातें की थी वो शहनाज ने मुझे सुनाई थी। उन बातों से मैंने ये राय कायम की कि गुलशन आरा का खामद पीरों की तरह नाम नहाद बरगजीदा नहीं बल्कि जहांदीदा और अक्ल दानिश वाला आदमी है। वो जो कुछ भी था, जैसा भी था, मैंने उसे क्या लेना था। मैं तो गुलशन आरा के कदमों में जा गिरने के लिए जा रहा था। मैं जब सड़क पर पहुंचा तो एक लारी शहर से आती हुई नजर आई। अभी दिमाग में कुछ सकत बाकी थी। मैं सड़क से ज़रा पीछे हट गया और एक दरख्त की ओट में गया। लादरी गुजर गई तो मैं सड़क के पार चला गया। अचानक मुझे चक्कर आया। मैं गिरने लगा और ऐसा लड़खड़ाया कि 2-3 कदम अपने आप ही बाएं को हो गए और फिर अपने आप ही आगे और पीछे हुए। मैंने सहारा लेने के लिए हाथ फैलाए और हवा को पकड़ने की कोशिश की। मैं गिरा नहीं, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं कदम आगे बढ़ाता तो कदम पीछे जाता। मुझे यूं नज़र आने लगा जैसे गुलशन आरा तक नहीं पहुंच सकूंगा। शायद यही मेरी वो फालतू हिस्स या कुव्वत थी जिसका एहसास मुझे ख्वाजा साहब ने और 1-2 बुजुर्गों ने भी दिलाया था। मैं उसी कुव्वत के बलबूते पर चल रहा था, लेकिन उसे चलना ना कहें। यूं भी होने लगा कि पिछला पाँव आगे करने लगता तो पाँव दूसरे पाँव से टकरा जाता और फिर ऐसा हुआ कि मेरा पाँव आपस में टकराए और मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन हाथ ज़मीन पर लगाकर उठ खड़ा हुआ। फासला 1 मील से कम था। मेरे नीचे ज़मीन हमवार नहीं थी और ये कोई बाकायदा रास्ता भी नहीं था। जहर दिमाग तक पहुंच गया था। मैंने एक बार दायां बाजू मालूम नहीं क्यों ऊपर करना चाहा तो बाजू ऊपर हुआ ही नहीं। इससे यह ज़ाहिर होता था कि मेरा असाबी निज़ाम बेकार हो गया और अभी मज़ीद बेकार होगा। आँखों के आगे अंधेरा आता और अब ये काली सी घटा आँखों के आगे से जल्दी नहीं हटती थी। मैं 2-4 कदम इस तारीकी में उठाता, फिर उजाला सा हो जाता और मैं चंद कदम ठीक उठाता। मेरा मुंह खुल गया था और उसमें थूक की नमी ख़त्म हो चुकी थी। जब भी मुंह बंद करने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे किसी ने बेशुमार कांटे मेरे मुंह में डाल दिए हों। मुझे ख्याल आया कि अब पानी मिल भी गया तो मैं पी ना सकूंगा। मुझे प्यासा मरना था। खुदा मुझे बड़ी ही अज़ियतनाक मौत मार रहा था। मेरी मर्दानगी, मेरी जुर्रत और बेखौफी ख़त्म हो चुकी थी। अपने ऊपर काबू नहीं आ रहा था। मैंने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया।
रोने से कुछ तस्कीन सी महसूस होने लगी। इंसान सर पर ताज रखकर सोने के तख्त पर बैठ जाए और फिरौनों की तरह रियाया से अपने आगे सजदे कराए और उसके इशारे पर इंसानों की गर्दनें उड़ जाएं और लोग उसे देखकर खौफज़दा होकर रास्ते से हट जाएं, तो भी इंसानी फितरत में खुदा ने जो कमज़ोरियां रख दी हैं वो एक ना एक दिन उसे शेर से गीदड़ बना देती हैं, और जिसके इशारे पर रियाया का खून बह जाता है वो एक चींटी को भी मारने से डरता है। मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी। खून में जहर मिल चुका था जिसने मेरे अज़म और मेरे जज्बे को ख़त्म कर डाला था। अब मैं आपको उससे आगे का सफ़र जो हाल सुनाऊंगा वो ऐसे लगता है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। कुछ याद है, कुछ जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ शायद फ़र्ज़ करके आपको सुना रहा हूँ। मैं एक बार गिरा तो कमज़ोर सा एक सहारा मिला और उसके साथ ही सर सर और खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई दी। ये मकई की फसल मालूम होती थी। मैं उठने लगा तो फिर घुटनों के बल गिर पड़ा। अब तो ऐसे लगता था जैसे मैं उठ नहीं सकूंगा, लेकिन मैं उठा। मालूम नहीं मैंने रास्ता किस तरह मालूम किया था। ये खेतों के दरमियान मेंढें थी जिन पर मैं जा रहा था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं सही सिमत पर जा रहा हूँ या मेरा रुख किसी और ही तरफ है। अब ये हाल था कि 2 या 3 कदम बड़ी मुश्किल से उठते थे और मैं गिर पड़ता। फिर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कितनी बार उठा, कितनी बार गिरा। मैं शायद पेट के बल रिंगा भी था, और ख्वाब की तरह याद आता है कि मैं हाथों और घुटनों के बल भी चला था। फिर इस तरह याद आता है जैसे मेरे नीचे कंकरियाँ, पत्थर और बड़ी सख्त ज़मीन थी, जिस्म में सुइयाँ चुभ रही थी। मैंने आखिरी बार जिस्म की कुव्वतों को यकजा किया, आंखें पूरी तरह खोली और पाँव पर चलने की कोशिश की। मैं तो जैसे तेज़ व तंद हवा में तैरने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक मकान नज़र आया और उसका दरवाज़ा भी दिखाई देने लगा। दरवाजे के दाएं और बाएं खिड़कियां भी नज़र आने लगी। ये गुलशन आरा का घर था। मुसर्रत की लहर से आई, लेकिन आंखों के आगे ऐसी तारीकी आ गई कि दिमाग उस तारीकी की नज़र हो गया। कुछ ऐसे याद आता है कि मैं दरवाजे तक पहुंच गया था, और ये भी याद आता है कि मैंने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन हाथ उठा नहीं था। फिर शायद मैं कभी ना उठने के लिए गिर पड़ा था। मेरी आंख खुली। पहला ख्याल ये आया कि मैं कहीं सो गया था और बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देखा है। एक लम्हे के लिए यह ख्याल आया और गुजर गया कि ख्वाब में सांप काटे तो ना जाने उसकी ताबीर क्या होती है। फ़ौरन ही ख्याल आया कि यह ख्वाब नहीं था, सांप ने मुझे काटा था, मगर मेरा दिमाग तो बेकार हो चुका था। फिर यह ख्याल कैसे आ रहे हैं और मैं अभी तक ज़िंदा कैसे हूँ? मैंने घबराकर आंखें खोली। मेरे सामने मेरे करीब ही धुंध में कोई इंसान झिलमिला रहा था, जैसे कोई झील के किनारे खड़ा हो और उसका अक्स पानी में तैर रहा हो और पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही हों। मैंने आंखें बंद करके फिर खोली तो धुंध कुछ साफ हो गई थी और मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, और यह आदमी पुलिस की वर्दी में नहीं। मौत के बाद मुझे कैद का खौफ था। मैंने आंखें मली, उठने लगा तो मैंने एक तो ये महसूस किया कि मैं उठ नहीं सकता। फिर पता चला कि मैं एक कमरे में हूँ और पलंग पर लेटा हुआ हूँ। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो अब बिल्कुल साफ नज़र आने लगा और उसके बगल के नीचे बैसाखी थी। मुझे परेशानी होने लगी कि गुलशन आरा के घर की बजाय मैं किसी और घर में पहुँच गया हूँ। मैं उससे पूछने लगा कि वो कौन है और मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरी जो आवाज़ निकली वो सरगोशी से ज़रा ही बुलंद थी। ये कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स लगता था। स्याह दाढ़ी जो बड़े सलीके से तराशी हुई थी उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। वो जवान तो नहीं था लेकिन बूढ़ा भी नहीं था। मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी और चेहरे पर जो जलाल सा देखा उससे मैं मरूब हो गया। मुझे कुछ ऐसा इत्मीनान होने लगा कि ये शख्स मुझे धोखा नहीं देगा। वो मेरे करीब आ गया। उसकी एक टांग में ना जाने क्या नुक्स था कि वो इस तरह बैसाखी का सहारा लिए हुए था। वो मेरे करीब आ गया। हिलने जुलने की कोशिश ना करो, उसने कहा, ज़रा ताकत बेहाल होने दो। तुमने शायद पूछा है कि मैं कौन हूँ और ये कौन सी जगह है।
उसने बड़ी ज़ोर से आवाज़ दी, गुलशन, गुलशन यहाँ आओ। दूसरे कमरे से मुझे बड़े तेज़ कदमों की आहट सुनाई दी जो मेरे करीब आकर रुकी। गुलशन का नाम सुनकर ही मेरे जिस्म में जान आ गई थी, लेकिन गुलशन को अपने ऊपर झुका हुआ देखा तो मुझे ऐसा धचका लगा जैसे मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा। गुलशन पलंग पर दोनों हाथ रखकर मेरे ऊपर झुकी हुई थी। क्यों सिकंदर? गुलशन ने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। क्या हो गया था? जज्बात का ऐसा तंदो तेज रेला आया कि मैंने गुलशन का वो हाथ जो मेरे सर पर था अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर रख लिया और मैं बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगा। गुलशन मेरे पास बैठ गई और मेरा मुंह और सर पर हाथ फेरती रही। उसके हाथ के लमस में और अंदाज में माँ के प्यार का सरूर था। मेरी माँ जब मर गई थी तो मैं रोया था। इतनी मुद्दत के बाद उस रोज़ मैं रोया तो मुझे यूं करार आने लगा जैसे मेरे सीने में बड़ा जहरीला गुबार रुका हुआ था जो आंसुओं के रास्ते बह गया। हौसला करो सिकंदर, मुझे बैसाखी वाले आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तो सुना था कि तुम बहुत दलेर आदमी हो। मैं बगैर पूछे समझ गया कि ये गुलशन का खामद है। मुझे सांप ने डस लिया था। मैंने कहा, अब मेरी आवाज़ में कुछ जान आ गई थी। मैं देख चुका हूँ। गुलशन के खामद ने कहा, ये मुआजिज़ा है कि तुम यहाँ आ गए थे और मैंने तुम्हारा ज़ख्म देख लिया। अगर तुमने ज़ख्म से कुछ ऊपर रुमाल ना बांधा होता तो मैं इसे आम सी किस्म का ज़ख्म समझता। तुम्हारे चेहरे और जिस्म का रंग देखकर भी मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें सांप ने काटा है। तुम यहाँ तक पहुँचा कैसे था शाह साहब? मैंने पूछा। मैं तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा था। हम अभी जाग रहे थे, शाह साहब ने जवाब दिया। ऐसे आवाज़ आई जैसे दरवाजे के साथ कोई जानवर या आदमी टकराया हो। मैं बाहर निकला तो एक आदमी को दरवाजे में ऊंधे मुंह पड़े देखा। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा। मैं आपके घर तक पहुंचना चाहता था। मैंने दरवाजे पर हाथ मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन बाजू ऊपर उठता ही नहीं था। फिर ऐसे हुआ होगा कि मैं पीछे या दाएं बाएं गिरने की बजाय आगे को गिरा और मैं दरवाजे के साथ टकरा गया हूँगा। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं था, शाह साहब ने कहा। मैं तुम्हें कोई अजनबी समझकर अंदर उठा लाना ही चाहता था, लेकिन तुम देख रहे हो कि मेरी एक टांग जिस्म का बोझ नहीं उठा सकती। मैंने गुलशन को बुलाया। लालटेन की रोशनी में तुम्हें देखकर गुलशन ने कहा कि ये तो सिकंदर है। घर में शहर की 2 औरतें आई बैठी थी, उन्हें भी बुला लिया। उन तीनों ने तुम्हें उठाकर पलंग पर डाला। तुम यहाँ क्यों आए थे? क्या तुम्हें मालूम था कि मैं सांप के डसे हुए का इलाज कर सकता हूँ? नहीं शाह साहब, मैंने जवाब दिया। मैं इस मकसद के लिए नहीं आया था। मैं खुद नहीं समझता कि मैं इधर क्यों आ गया था और जाता भी कहाँ। अपनी घर खाला के घर तुम क्यों नहीं गए? गुलशन आरा ने पूछा। नहीं गुलशन आपा, मैंने कहा, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं चौंक पड़ा और पूछा, वो 2 औरतें कौन थी जिन्होंने मुझे उठाया था? क्या वो मुझे जानती थी? मैं कुछ कह नहीं सकती, गुलशन ने जवाब दिया। उन्होंने तुम्हारा नाम तो लिया नहीं था। शाह साहब ने उन्हें उस कमरे में ज़्यादा रुकने भी नहीं दिया होगा। वक्त क्या होगा? दिन के 11 बजने वाले थे, शाह साहब ने जवाब दिया। फिर मुझे बेहोश हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। मैंने कहा, रात शायद यही वक्त होगा जब सांप ने मुझे काटा था। शाह साहब हंस पड़े और बोले, तुम कल पूरा दिन, पूरी रात और आज इस वक्त तक बेहोश रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारी अभी ज़िंदगी लिखी थी, इसलिए मेरी दवाई काम कर गई। ये भी हो सकता है कि वो सांप इतना ज़्यादा जहरीला नहीं था। देसी दवाइयों और जड़ी बूटियों में बहुत असर है। एक सन्यासी की मैंने कभी बहुत खिदमत की थी। उसने मुझे 3-4 जड़ी बूटियों के नाम बताए थे। उनमें 2 ऐसी हैं जो यहाँ कमोबेश 100 मील के इलाके में कहीं भी नहीं मिलती। सिर्फ एक जगह है जहाँ बड़ा तलाश करने के बाद मिलती हैं। अगर तुम फ़ौरन मेरे पास पहुँच जाते तो मैं तुम्हें इतनी देर बेहोश ना रहने देता। अल्लाह का शुक्र है कि इस हालत में भी ये दवाई काम कर गई। क्या अब तुम्हें चक्कर तो महसूस नहीं होते? मैं अब चक्कर महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि सर में ज़रा सी भी गरानी नहीं थी। दिमाग सोचने के काबिल हो गया था। ज़हन बिल्कुल साफ था। अलबत्ता जिस्मानी कमज़ोरी इतनी थी कि मैं उठ नहीं सकता था। मैंने शाह साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि वो मुझे शाम तक उठकर बैठने के काबिल बना देंगे और अगले रोज़ मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा।
इसे इत्तफाक कहें, मुआवजा कहें कि मैं गुलशन से अपने गुनाह बख्शवाने इधर आया था और मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि शाह साहब सांप के डसे का इलाज इस तरह करते हैं कि मुर्दे में जान डाल देते हैं। खुदा का ये इशारा मेरे लिए बहुत कीमती था। मुझे महसूस होने लगा कि खुदा मुझे कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए ज़िंदा रखना चाहता है। ये ख्याल भी आया कि खुदा ने मुझे मज़ीद इम्तिहान में डालने के लिए ज़िंदा रखा है। गुलशन अपने खामद के साथ मेरे पास बैठ गई। वो दूध ले आई थी जो चम्मच से मेरे मुंह में डालती जा रही थी। सांप के डसने के बाद ये पहली ग़िज़ा थी जो मेरे जिस्म में जा रही थी। मैंने सुना था कि गुलशन का खामद घोड़े से गिरकर ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया था और एक टांग की भी हड्डी टूट जाने से बेकार हो गई थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया 1.5-2 महीने गुजरे, शाह साहब की ज़हनी माजूरी ख़त्म हो गई है। अलबत्ता टांग ने जितना ठीक होना था उतनी ठीक हो गई है, लेकिन जिस्म का बोझ नहीं सहार सकती। अब अपने मतलब कुछ बताओ सिकंदर, शाह साहब ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम मफरूर हो। पहले आप मुझे एक बात बताएं, मैंने पूछा। मैं परसों से यहाँ आया हूँ, कि आपने मेरी खाला को इतला नहीं दी? नहीं, शाह साहब ने कहा। मैं जानता था कि तुम मफरूर हो, सारा शहर जानता है। ये मालूम किए बगैर कि तुम यहाँ कैसे आए थे, मैं किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी की इतला देने का ख़तरा मूल नहीं लेना चाहता था। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। उसके साथ ही मैं शाह साहब की दानिशमंदी का कायल हो गया। मैंने उन्हें पूरी तफसील से बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया था और क्या करके जा रहा हूँ। हाँ सिकंदर, शाह साहब ने कहा, अगर तुम ये काम कर चले हो तो बहुत बड़ा काम कर चले हो। तुम्हारी खाला अपनी बेटी के साथ और कभी अकेली यहाँ आती रही है। बेचारी अब भी कभी आती है और रो रो कर कहती है कि कोई ऐसा तावीज़ या कोई टूना करो जिसके असर से पुलिस उन्हें तंग करना छोड़ दे। फिर आपने उनके लिए क्या किया शाह साहब? मैंने पूछा। आपके हाथ में तो सुना है करामात हैं। मैं दुआ के सिवा और क्या कर सकता था सिकंदर, शाह साहब ने कहा और ज़रा हंसकर बोले। मालूम नहीं लोगों ने मुझे करामात वाला पीर क्यों बना लिया है। मैं तो अपनी ज़ात के लिए अल्लाह अल्लाह करने वाला दरवेश हूँ। लोग समझते हैं कि खुदा के साथ शाह साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक़ है जो आम लोगों को हासिल नहीं हो सकता। शायद मेरी दुआओं में असर है। जिस किसी के लिए भी दुआ करता हूँ जज्बात में डूबकर और खुदा के हजूर आंसू बहाकर करता हूँ। लोग बेचारे सहारे तलाश करते हैं। अगर मैं लोगों की अकीदतमंदी को देखकर पीरी मुरीदी का चक्कर चला दूं तो यहाँ लोगों के पैसों से महल खड़ा कर लूं, लेकिन मैं पीर नहीं, मैं तो अल्लाह के हबीब का मुरीद हूँ। मुझे अगर अल्लाह ने कोई करामत दी है तो वो इश्क़ रसूल के सदक़े दी है। शाह साहब, मैंने कहा, कुछ तो आपके हाथ में है जिस पर लोग खिंचे हुए आपके पास चले आते हैं। यही कुछ है जो मैंने तुम्हें बता दिया है, शाह साहब ने कहा। हाँ, ये बात है कि दिलो दिमाग को दुनियावी आलाइशों से पाक रखता हूँ। दिमाग को अल्लाह की राह पर छोड़ रखा है, इधर उधर भटकता नहीं। उसी का असर है कि दिमाग वो भी सोच लेता है और बातन की आंखों को दिखा देता है, और जो लोगों की नज़रों से उजल होता है तुम भी कभी आजमा देखो। ये बड़ी गहरी बातें हैं सिकंदर, गुलशन ने कहा। तुमने क्या जुर्म किया था, मफरूर कैसे हुए हो? मैंने उन्हें बताया कि एक गरीब आदमी की बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक अंग्रेज़ अफसर को कत्ल किया था। मैंने उन दोनों को यह वाक़या तफसील से सुनाया। फिर ये भी सुनाया कि अंग्रेज़ अफसर शहनाज का भी मुतालबा करते थे और मैं उसे अपने साथ भगा कर ले गया था। गुलशन आरा और शाह साहब शहनाज का नाम सुनकर हैरान हुए कि वो कहाँ से कहाँ जा पहुँची। मैंने जब उन्हें बताया कि शहनाज ने एक नवाबजादे के साथ शादी कर ली है और उसका नाम हमीदुल्लाह खान है, तो गुलशन के चेहरे का रंग बदल गया। शाह साहब की बातों से पता चला कि वो गुलशन आरा के मादी से वाकिफ़ हैं। मैंने गुलशन को बताया कि वो गुनहगार नवाब अपने ही हाथों मारा जा चुका है और वहाँ अंग्रेज़ अफसर रंग रलियाँ मना रहे हैं। अल्लाह की राह से भटकने वालों का यही अंजाम होता है, गुलशन आरा ने कहा। बेगुनाहों को गुनाहों में डुबो देने वालों को खुदा इतनी लंबी ढील नहीं दिया करता। अब ये बताओ सिकंदर, शाह साहब ने पूछा, क्या करना चाहते हो? क्या बाकी उम्र इसी तरह भागते और छुपते गुजारोगे? अमूमन यूँ होता है कि जिस तरह तुमने नेक नीयती से एक जुर्म का इर्तिकाब किया है और फरार हो गए हो, इस तरह बाद आदमी जुर्म कर बैठते हैं।
और सज़ा से फरार इस तरह हासिल करते हैं कि डाकुओं के किसी गिरोह से जा मिलते हैं। इसके सिवा और वो कर भी क्या सकते हैं? किसी शरीफ घर में तो उन्हें पनाह नहीं मिल सकती। तुम्हारा इरादा क्या है? डाकू नहीं बनूंगा शनास साहब, मैंने कहा।